Hello and welcome to Module 2 of this Crypto Mastery course. I hope the first module was helpful. Now we're going to pace along and आहिस्ता आहिस्ता हम टेक्निकल चीज़ों के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे. Module 2 is very important and I would again request you that you please watch this entire module in one go. um, बीच में अगर पानी की ब्रेक लेनी है आप वो ले सकते हैं, लेकिन इस तरह ना कीजिएगा where you open the module, close it and then watch it the next day. Sit down and watch it in one go और शुरू से लेकर आखिर तक आपने देखना है. um, इस मॉड्यूल का नाम है DDE. I am going to be using this term very often. तो अगर आपके पास कोई notepad है, if you want to take notes in your phone, please write down the word DDE. DDE stands for Data Determines Everything. That is one of the most important aspects of crypto and any other asset that you might be trading. So we'll first be talking about what exactly is DDE. हम किस तरीके से data को use करते हैं to predict what might happen in the future. Then we will talk about how cycles work in the crypto space, because there is a bull market, there is a bear market, so we will be talking about that. एंड फाइनली हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की. और फिर मॉड्यूल 3 से हम टेक्निकल एनालिसिस अपना बिल्कुल प्रॉपरली इन डेप्थ स्टार्ट कर देंगे, वेयर यू विल स्टार्ट लर्निंग technical analysis. But before I start, some of you might not know about the chart that I have opened right now, or the website. The website is called tradingview.com. ये ऊपर आपको लिंक दिया गया है, आप जा सकते हैं, इस पे साइन अप कर सकते हैं. And you can start using tradingview.com to look at charts for Bitcoin or whatever coin that you're trading for. अच्छा, अभी हम बात करते हैं DDE मैं क्यों यूज़ करता हूँ and why does data determine everything. जो क्रिप्टो मार्केट है वो साइकिल्स में चलती है, अराउंड 4 ईयर साइकिल्स चलती है, जिसके अंदर बुल मार्केट होती है where the price of coins goes really high. And like I said in the beginning of the lecture, once you complete this lecture आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगी, and at the same time you'll be looking forward to the future, especially the year 2024 and 2025. Again, I don't know when you'll be watching this. If you're lucky enough to be watching this in 2023, this is the perfect time to learn all of these things. So बुल मार्केट के अंदर प्राइसेस ऊपर जाती हैं, बेयर मार्केट के अंदर प्राइसेस नीचे जाती हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम डिटर्मिन किस तरीके से करते हैं. ये हम डिटर्मिन करते हैं बाय दिस टर्म कॉल्ड BTC हैविंग. BTC हैविंग बेसिकली ये होता है, अगर इफ़ यू सी दीज 4 लाइन्स ऑन माई स्क्रीन, these 4 green lines, you will see dates at the bottom. So it says Monday, November 12th, 2012. Then it says Monday 4th July 2016. Then it says 27th August, again Monday 2020, and then Monday 22nd April 2024. ठीक है. अब आप यू माइट बी आस्किंग व्हाट BTC हैविंग इज, उसके बारे में हम बात करते हैं. बट टू गेट ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ऑल यू नीड टू डू इज गो on Google and type in BTC having dates. So you will see the dates are given over here: November, July, May, and the next one is in 2024. That's when the next one is expected. ठीक है. Now, every time a BTC having occurs, after a few weeks आपकी बुल मार्केट स्टार्ट हो जाती है, और ये हर 4 साल बाद एक दफ़ा आती है आपकी हैविंग साइकिल. और इसमें होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक बिटकॉइन के माइनर हैं,
people who secure the BTC network and our miners. आपने देखी होंगी, अगर मैं गूगल पे जाके BTC माइनर माइनिंग मशीन्स लिखूं, माइनिंग मशीन्स, तो आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो इस किस्म की माइनिंग मशीन्स यूज़ करते हैं और बिटकॉइन को माइन करते हैं, उनको रिवॉर्ड मिलते हैं। तो बेसिकली जो बिटकॉइन माइनर्स होते हैं उनको नेटवर्क सिक्योर करने के रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और हर 4 साल बाद जब हैविंग होती है तो उनके रिवॉर्ड्स गेट कट इन 50%। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको नेटवर्क सिक्योर करने पे पहली हैविंग पर 100 BTC मिलता था, तो नेक्स्ट हैविंग पे आपको 50 BTC मिलता है। फिर उसके बाद 4 साल बाद जब अगली साइकिल आती है तो आपको उससे आधा मिलता है 25, एंड देन हाफ ऑफ 25। आई होप दिस मेक सेंस। सो जो भी ये मैं आपको एग्जांपल पर्पसेस के लिए बता रहा हूँ, एंड आई हैव ट्राइड टू यूज़ वेरी वेरी सिंपल टर्म्स इन दिस कोर्स, ताकि एक आम इंसान भी समझ सके इन टर्म्स को, और इनको मैं चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करूँ। ठीक है, तो अभी हम ज़रा 4 साइकिल्स को एनालाइज करेंगे बिटकॉइन की। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें किस तरीके के रिटर्न्स मिले। अगर आपके पास एक कैलकुलेटर है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आप कैलकुलेटर ले लें ताकि आपको चीज़ों की समझ आ जाए। इफ़ यू डोंट हैव अ कैलकुलेटर, देन आई विल आल्सो बी कैलकुलेटिंग द रिटर्न्स that one might have gotten in the past and what can be expected in the future. And that is why I use the term DDE, data determines everything. हम डेटा को देख रहे हैं और डेटा यूज़ करके हम डिटर्मिन कर रहे हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं मंडे टू मंडे 12 नवंबर 2020 2012। आप समझिए हम लोग टाइम ट्रेवल कर, सही है, हम लोग टाइम ट्रेवल करें बैक इन 2012। Now we're in the year 2012, and imagine I am, um, you know, a person who does crypto and is telling you to buy crypto and keeps telling people that look, every time a halving cycle occurs, the BTC bull market starts. Some might listen, some might not listen. आप लोगों ने कोर्स लिया है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, जो डाटा आपको दिखा रहा हूँ, वो आप देखेंगे भी, गौर से सुनेंगे भी, और इसको अप्लाई करेंगे। एंड व्हेन आई गेट टू द एंड ऑफ यू नो दिस data calculation that I'm doing now, तो आई थिंक लाइक आई सेड बिफोर, आपको खुशी होगी सुन के कि हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स अज्यूम दैट वी आर इन द ईयर 2012, और मैं आपको बोलता हूँ कि आप 2012 के अंदर ये BTC की आ गई है। इस वक्त BTC जो है $11 का है। आप इसके अंदर $1000 इन्वेस्ट कर दें, ठीक है, for about 1 year when the bull market ends, and you can expect great returns. Since all of you are my students, आप मेरी बात मानते हैं और आप $11 का बिटकॉइन खरीद लेते हैं 2012 के अंदर, और आप $1000 इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब आप ये देखें, ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम खोला हुआ है। हम आगे जाके टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी बात करेंगे व्हेन वी गो टू मॉड्यूल 3, बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड दैट वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, और ये हैविंग के बाद 1 वीक, 2 वीक, बिकॉज ईच कैंडल रिप्रेजेंट्स 1 वीक। जिस भी हम टाइम फ्रेम पे होंगे उसको वो रिप्रेजेंट करती है। सो सिंस वी आर ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, ईच कैंडल रिप्रेजेंट्स 1 वीक। सो ये हुई आपकी BTC की हैविंग, ठीक है, $11 प्राइस है। And after 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weeks, which is about a month and a half, आपकी proper bull market start हो गई है, ठीक है, bull market आपकी start होगी, and see where the price is going of Bitcoin. So now you see that the price of Bitcoin keeps going up, keeps going up, and keeps going up, and this is where the top of that cycle was. So November 2012 से लेकर October 13, October 2013, almost 1 year, सही है, आपने
ये देखें, ये इसकी डेट बन रही है नवंबर 25th, जो टॉप है 2013। यू कैन सी इन द बॉटम राइट देयर वेयर द डेट इज मार्क। दैट मीन्स कि एक साल बाद बिटकॉइन की प्राइस चली गई $11 से, $11 जहाँ पे आपने लिया था, टू अबाउट $1200। अब ज़रा हम कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारा $1000 था वो कितना बन जाएगा ड्यूरिंग 1 ईयर। सो हम करेंगे ये, वी विल डिवाइड 1155 because that's what the top is, divided by 11 because that's what we bought the bitcoin for. अगर आप करेंगे तो 105 बनता है, मतलब 105x रिटर्न्स आपको मिले। एक साल के अंदर आपने बिटकॉइन के अंदर $1000 डाले और उसको एक साल के लिए होल्ड किया, तो आपका $1000 $1,05,000 बन गया। ठीक है। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि हर कोई एग्जैक्ट टॉप तो नहीं बेच सकता, किसी को नहीं पता होता। अगर कोई बोलता है कि उसको एग्जैक्ट टॉप को पता है, तो दे नॉट टेलिंग द ट्रूथ। सो अगर आप फॉर एग्जांपल 50x पे भी बेचते हैं, तो आपका $1000 विद इन 1 ईयर $50,000 बन गया। ठीक है। सो दिस इज हाउ द बुल मार्केट वर्क्स, वेयर द प्राइस गोज अप फॉर 1 ईयर, 1 ईयर, 1.5 ईयर, एंड देन आपकी बेयर मार्केट आती है। बेयर मार्केट के अंदर आपकी, आप देख सकते हैं कि $1200 से आहिस्ता 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 करते करते बिटकॉइन जो है वापस तकरीबन $191 तक आ गया। सही है। 100, आप ये समझ लें कि $200 तक BTC बिटकॉइन आ गया। अब ये जो फेज़ होता है, ये जो आप देख रहे हैं साइड वेज जा रहे, साइड वेज का मतलब है कि ना ज़्यादा पंप करे ना ज़्यादा डंप करे, ये जो सारा फेज़ है, इस फेज़ को बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज़, विच हैपन्स बिफोर द हैविंग। सही है। सो ऑल ऑफ दिस इज कॉल्ड द एक्यूमुलेशन फेज़। एक्यूमुलेशन का मतलब है कि लोग बिटकॉइन को ख़रीद रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जब 2012 के अंदर आई थी पहली हैविंग, 2016 में नेक्स्ट आएगी, तो वो अराउंड 2015 जो है वो एक्यूमुलेट करना शुरू किए हैं बिटकॉइन को, बिकॉज उनको पता है कि 2016 में आपकी साइकिल फिर से स्टार्ट होगी, बेयर मार्केट ख़त्म होगी, एंड देन यू विल बी एबल टू मेक रिटर्न्स। ओके। सो पहली साइकिल में से आपको BTC के 105x मिले। अब चलते हैं हम दूसरी साइकिल के ऊपर। अगेन, data determines everything, we're just going by what the data tells us। ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था कि हम 2012 से टाइम ट्रैवल करें 2016 के अंदर। नाउ 2016 के अंदर ऑन द डेट ऑफ द BTC हैविंग, BTC की प्राइस है अबाउट $650। ठीक है। $650 है। और एक दफ़ा फिर मैं आपको 2016 के अंदर कहता हूँ कि आप, क्योंकि हैविंग आ गई है, आप इसके अंदर $1000 इन्वेस्ट कर दें, एंड यू विल मेक good returns in about a year or so. Okay, so we invest 600 at BTC is about $650. We invest $1000. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 weeks after, your uptrend starts। ठीक है। आपका अपट्रेंड स्टार्ट हो गया, आपकी बुल मार्केट स्टार्ट हो गई 2016 के हैविंग के बाद, एंड सी वेयर द टॉप इज। सो इफ़ यू गो एंड लुक, आपका जो टॉप बन रहा था वो बन रहा था इस जगह पे, विच इज़ $20,000। सो BTC वेंट फ्रॉम $650 ऑल द वे अप टू $20,000। अब हम देखते हैं कि इस साइकिल के अंदर, इस बुल मार्केट के अंदर हमें क्या रिटर्न्स मिले। सो हमने 650 का लिया था। इफ़ वी डिवाइड $20,000 डिवाइड बाय 650, तो आपको ऑलमोस्ट 30x रिटर्न्स मिले हैं। ठीक है। मतलब आपके $1,000 तकरीबन 30,000 बन गए। लेकिन अगर आपने 200 पे लिया होता, 200 पे लिया था जहाँ एक्यूमुलेशन फेज था, तो अगर हम 200 पे लेते एंड वी डिवाइड 20,000 डिवाइड बाय 200 इन द एक्यूमुलेशन फेज वी बॉट,
तो आपको फिर से 100x रिटर्न्स मिलते BTC के ऊपर. But since so you can expect returns of 30x to 100x again on Bitcoin in this cycle. हम फिर कहते हैं हमने 50x पे बेच दिया या 60x पे बेच दिया, आपको फिर $50,000 से $60,000 बन गए. और कितना इंतज़ार करना पड़े? 1 साल. देखिए जुलाई 16 था और टॉप जाके बना तकरीबन दिसंबर 2017 के अंदर. 1 year. All it takes is 1 year to change your life, whether you invest in Bitcoin or whether you invest in altcoin, जिसके बारे में हम अभी इसके बाद बात करेंगे. Okay? So now, again, like I said before, data determines everything. जब आपकी BTC का टॉप बन गया, again आप देखिए हम इस पॉइंट पे हम बेयर मार्केट के अंदर एंटर हो गए, ठीक है. एंड देन द प्राइस गोज डाउन 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 डाउन. अब 2016 के अंदर हुई थी तो ऑब्वियसली 2020 के अंदर अगली होगी cycle. And again, like I showed you before, DDE, data determines everything. Before the halving cycle, we see an accumulation phase where Bitcoin is being accumulated for around $3,000. ठीक है. Now remember the term $3,000. अब आप क्योंकि halving की cycles को समझ रहे, so you pick up BTC at about $3,000. कुछ आप क्योंकि आपको accumulation phase का पता चल गया कि accumulation phase halving से थोड़ा अर्सा पहले स्टार्ट होते हैं, where the market goes sideways, and then halving के बाद BTC ऊपर जाता है. So now 2000 जुलाई 2016 के बाद अप्रैल 2020 के अंदर आपकी अगली halving आई. सही है. और आपकी जब अगली halving cycle आई तो halving के वक्त BTC की प्राइस थी तकरीबन $8,000. बट रिमेंबर हमने एक्यूमुलेशन फेज में कर लिया है तो हमने तकरीबन 3,000 कर लिया. सो हम रिटर्न्स देख लेंगे. हम देख लेते हैं कुछ लोगों ने 3,000 पे इन्वेस्ट किया, कुछ ने $1,000 8 पे इन्वेस्ट किया. अब BTC वेंट सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वीक्स के बाद अगेन DDE, डाटा डिटरमिन्स एवरीथिंग, आपकी साइकिल स्टार्ट हो गई है. ठीक है जी. योर बुल मार्केट इज हियर एंड BTC वेंट टू, अगर आपने 2020 के अंदर क्रिप्टो स्पेस के अंदर एंटर हुए, you know that it went to about 70,000 in 1 year. April 2020, November 2021. So 1.5 years, how long the bull market remains. So 70,000 को अगर हम डिवाइड करें 3,000 से, एक्यूमुलेशन फेज में अगर आपने लिया तो आपका तकरीबन 23x रिटर्न्स हुए हैं आप. सही है. 23x returns. Now you see how the returns are also getting smaller. पहले आपको 100x हुए, फिर तकरीबन 50x हुए, इस दफ़ा 23x हो रहे. और अगर आपने 8,000 पे लिया था और 70,000 टॉप था, डिवाइड बाय 70,000 डिवाइड बाय 8,000 which equals about 8.7x 9x. तो आपके रिटर्न्स अगर एक साल के अंदर आपको 5x रिटर्न्स BTC से बिटवीन 5x to 9x मिल सकता है. ठीक है. तो जो थ्योरी है वो ये है कि पहले जिस तरह रिवॉर्ड्स कम हो रहे हैं उस तरीके से रिटर्न्स भी BTC के कम हो रहे हैं. लेकिन आगे आने वाले मॉड्यूल्स के अंदर आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि BTC के रिटर्न्स कम हो रहे हैं, लेकिन जिन चीज़ों के रिटर्न्स इंक्रीज हो रहे हैं वो हैं ऑल्ट कॉइन्स. और वो मैं आपको दिखाऊंगा कुछ एग्जांपल के किस तरीके से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपको रिटर्न्स मिलते हैं. खैर, फॉर नाउ वी सी दैट अगेन ये आपका टॉप है. उसके बाद आपकी बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई है. ठीक है. बेयर मार्केट भी तकरीबन 1-2 साल रहते हैं. एंड नाउ वी कम टू द प्रेजेंट टाइम जो अभी जिसके अंदर हम हैं. तो आपने देखा होगा जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि एक आता है एक्यूमुलेशन फेज. दिस राइट हियर इज व्हाट द एक्यूमुलेशन फेज इज. एंड नाउ we're in the current times. So today, आज जुलाई 2023 है, and this is when I'm making the videos for you. So July 2023, where the accumulation phase is happening, and BTC is trading for about $29,000. ठीक है. और
आपकी जो नेक्स्ट हैविंग एक्सपेक्टेड थी, जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, दैट इज़ अराउंड 2024. सो जुलाई से लेकर अभी तक अभी भी वक्त है where we accumulate, and once the accumulation phase is over and we hit the having, जब हैविंग स्टार्ट होगी उसके चंद हफ्तों बाद हमारी बीटीसी की साइकिल स्टार्ट हो जाएगी ऐसे, और फिर आपकी बुल मार्केट स्टार्ट होगी। और पिछली बुल मार्केट के अंदर मैंने आपको बताया था अराउंड 9x मिले थे। तो लेट्स अज्यूम दैट अराउंड द हैविंग डेट बीटीसी की प्राइस $30,000 जो अभी इसी वक्त है, हम कहते हैं वो साइडवेज जाती रहती है, और $30,000 बीटीसी की प्राइस है। पिछली साइकिल के अंदर हमें ऑलमोस्ट 9x रिटर्न्स मिले थे, हम कहते हैं हमें इस दफ़ा 9x भी नहीं, हमें बिटवीन 3 to 5x रिटर्न्स मिले ऑन बीटीसी। सो अगर 30,000 से हमें 3x रिटर्न मिले in a year, that means that BTC will go from $30,000 to $90,000, possibility on the lower time, मतलब lower end spectrum के। और अगर हैविंग पे 30,000 वैल्यू है और उधर से 5x करते हैं, तो 30,000 times 5, if you do that, 30,000 times 5 equals to $150,000 almost. So इस जगह तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीटीसी तकरीबन आ सकता है बिटवीन अराउंड दिस एरिया, सही है। सो नाउ इफ़ आई टेल यू दैट अगले साल 2024 में हैविंग है, और जो मैंने आपको सारा डाटा दिखाया है, DDE, डाटा डिटरमिन्स एवरीथिंग, all that I've shown you, all that I've shown you, would you buy BTC if you are watching the course now? Would you buy BTC now? Yes or no? Ask yourself this question. Okay, so ask yourself this question, whether you want to, or whether you'll buy BTC right now or not. And then when the halving happens, when the bull market starts, फिर BTC pump करेगा, altcoins pump करेंगे, and that's where money will be made and you will have the opportunity to change your life. So I hope this lecture about data determining everything was helpful. आपको चीज़ों की समझ आई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या अगर आपका कोई सवाल है, यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड री वॉच दिस लेक्चर। जब आप ये लेक्चर एक दफ़ा फिर से सुनेंगे, यू कैन स्किम थ्रू, आपको और चीज़ों की समझ आएगी। बट बिफोर आई गो, आई वॉन्ट टू talk to you guys about risk management. How to manage risk when you're trading and when you first start trading. देखिए, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में और बाकी जो सब कॉन्टिनेंट के मुल्क हैं, उधर अपनी चीज़ें बेच के क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू हो जाते हैं। बट यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द पर्पस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज़। इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब किसी इंसान के पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े होते हैं, दे आस्क अदर्स फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइस, और वो पूछते हैं कि हमें बताएं कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसके थ्रू हमें विद इन 1 year 2 year 3 years टाइम हमें अच्छे रिटर्न्स मिल जाए। सब कॉन्टिनेंट के अंदर लोग अपने ज़ेवरात बेचते हैं, अपनी जमा पूंजी ज़िंदगी की लगा देते हैं, again without learning, without understanding how these cycles work, without understanding what bull market, what bear market is, without understanding DDE, how data determines everything. और उन लोगों को लॉस होता है क्योंकि वो सीखते नहीं हैं। मैंने आपको पहले बताया था कोरिलेशन मेरे हर लेक्चर के अंदर होगी, मतलब हर लेक्चर जो होगा उसकी पिछले वाले लेक्चर से कोरिलेशन होगी। आपको मैंने बताया था कि अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और आपको मर्सिडीज़ दे देते हैं, तो अगर आप मर्सिडीज़ दीवार में मारते हैं, इसमें आपका कसूर है, मर्सिडीज़ का कसूर नहीं है। इसी तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट लर्निंग, विदाउट यूजिंग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, तो उसमें कसूर आपका है। बट द गुड न्यूज़ इज़ यू हैव बॉट दिस कोर्स, यू आर लर्निंग, यू आर गोइंग थ्रू द मॉड्यूल्स, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि आप एटलीस्ट एफर्ट डाल रहे हैं सीखने के लिए बिफोर यू मेक योर इन्वेस्टमेंट। तो कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो आपने अपने जहन में रखनी है।
योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्हेन योर इन्वेस्टमेंट डबल्स, मतलब अगर आप $1000 लगा रहे हैं, जब 1000 से $2000 पे चले जाएं, तो आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल लें। जब आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल के बैंक के अंदर ले जाएंगे, आप एक तो अपने आप को रिस्क फ्री करें, और उसके ऑन टॉप दैट जो आपको जितने भी profits banenge, those will be easy profits for you and you can do whatever you want with those. That's the first thing. The second thing is a lot of people start jumping into future trading as soon as they get into crypto. आप पहले आइए, इसको एज अ स्किल सीखिए, पेपर ट्रेड करिए। पेपर ट्रेड की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी एक्सचेंजेस, बाइनेंस हो गई, बायबिट होगी, ये अपने पेपर ट्रेडिंग जहाँ पे आपको यूएसडीटी दिए जाते हैं, एक्चुअल यूएसडीटी नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए यूएसडीटी दिए जाते हैं ताकि आप अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकें। सो जब आप ये कोर्स फिनिश कर लीजिए, आप थोड़ी प्रैक्टिस ट्रेडिंग करें, स्पॉट के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी अगर आप फ्यूचर करते हैं, एंड सी आपके कितने ट्रेड्स सही जा रहे हैं, कितने ट्रेड सही नहीं जा रहे, एंड सी वे यूर going wrong. And you can always come back to the lectures and listen to these courses again because you've bought this course for life. ठीक है, तो आपने पहले काम सीखना है and then you will move forward um, to the next step. So managing your risk is extremely important, and in um, the coming lectures I will also talk about portfolio management जो आगे आने वाले मॉड्यूल्स हैं। लेकिन सिर्फ अपने जहन में एक चीज़ रखिए कि अगर आप अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट, अगर आप डे ट्रेड करते हैं, डे ट्रेड का मतलब है कि रोज़ ट्रेड करते हैं, अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक टारगेट सेट करें कि आपका इतना टारगेट है। क्योंकि अगर टारगेट सेट नहीं करेंगे, आप बार बार ट्रेड्स लेते रहेंगे और हो सकता है आपको लॉस हो जाए। यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड कि आप दुनिया के बेहतरीन प्रोफेशनल्स देख लें जो बहुत सक्सेसफुल हैं। आप पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं बाबर आजम, इंडिया के क्रिकेटर हैं विराट कोहली, यू माइट बी अ मेसी फ़ैन, यू माइट बी अ रोनाल्डो फ़ैन, बट उन सारों का एक कॉमन एट्रीब्यूट है विच मेक्स देम सक्सेसफुल. Whether Babar Azam, whether Virat Kohli score a century or not in a match, दैट डज़ नॉट मीन कि वो अगले दिन जाके प्रैक्टिस छोड़ देंगे, जिम को छोड़ देंगे, अपनी डाइट को छोड़ देंगे। वो बेशक 100 करें, बेशक 0 पे आउट हो, वो वही रूटीन फॉलो करते हैं जो वो करते आ रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट मेक्स देम सक्सेसफुल। इसी तरीके से मेसी, रोनाल्डो भी हर रोज़ उनकी एक ट्रेनिंग ड्रिल होगी, उनकी डाइट होगी, और उसके बाद ऑब्वियसली मैच डे परफॉर्मेंस होगी। लेकिन जो मैच डे परफॉर्मेंस होगी, अगर किसी दिन की बुरी परफॉर्मेंस, इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रैक्टिस छोड़ेंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू टू फर्स्ट लर्न दिस, मेक सम रूल्स एंड देन स्टिक टू दोज रूल्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पोर्टफोलियो $1000 का है और आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, और आपका गोल है कि मैंने रोज़ के $10 या $15 बनाने हैं एवरी डे, वंस यू हिट दैट टारगेट, स्टॉप ट्रेडिंग फॉर द डे। मतलब अगर आपने ये सोचा हुआ है कि मैं $10 बनाता हूँ रोज़ के, जब आपके $10 हिट हो जाए, स्टॉप ट्रेडिंग। लेकिन अगर फिर भी आपको होता है कि आपको ट्रेड करने का दिल करे, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने $20 एक दिन में बना लिया और आपको हो रहा है कि आई वांट टू ट्रेड अगेन, डोंट यूज़ योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यूज़ द प्रॉफिट्स दैट यू मेड। आपने $20 बनाए, ठीक है, आप $10 साइड पे रख लें और $10 से फिर ट्रेड करने की कोशिश करें या फिर रिस्क लेने की कोशिश करें। अगेन, it depends on the size of your portfolio. I hope you understand the point that I'm trying to make. अगर फॉर एग्जांपल आपने $20 बनाए, $10 से आपने फिर से ट्रेड लिया और वो $10 आपके लॉस हो जाते हैं, एट द एंड ऑफ द डे यू विल स्टिल बी इन प्रॉफिट्स। सो दीज आर सम टैक्टिक्स दैट यू कैन यूज़, जिसके बारे में हम आगे इन डेप्थ बात करेंगे अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, दैट यू गाइज कैन यूज़ to become a successful trader, and you have to apply these rules to your trading strategies every day, whether you have winning trades or whether you have losing trades. So this was module 2. I hope it was helpful. I hope आपको डेटा यूज़ करना आया होगा। अगला लेक्चर
हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जाएंगे, एंड आई विल सी यू गाइस इन मॉड्यूल 3. अगेन लाइक आई सेड बिफोर, यू शुड बी रियली प्राउड ऑफ वेयर यू हैव गॉटन. आपने तकरीबन 20% कोर्स कंप्लीट कर लिए, एंड यू आई एम श्योर यू विल गेट थ्रू the rest of the course and become a great trader. I will see you in the next module.